આજના સેશન છે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી વર્સિસ યુએસ ટેરિફ, ટર્નિંગ ચેલેન્જીસ ઇન્ટુ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. આ વિષય પર આપણે જે સેશન છે શરૂ કરીએ છીએ અને પ્રારંભમાં સૌને આવકારું છું. જીએફઆરઆરસી અને ધી સધર્ન મીડિયા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી આપ સૌનું સ્વાગત છે. અને બંને સાથે મળીને એક સરસ મજાનું સેશન જે વર્તમાન સમયની મોટી સમસ્યા અને આપણા સૌ માટે ચિંતાનો વિષય છે કે યુએસ ટેરિફનું શું થશે. એટલે આગળ એક જગ્યાએ વાંચ્યું હતું કે બે સમસ્યા અત્યારે તારીફ લોકોને જોઈએ છે પણ સમસ્યા છે ટેરિફ. તો આ બાબતમાં સેશન શરૂ કરીએ એ પહેલાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સેક્રેટરી શ્રી બીજલભાઈને સ્વાગત એડ્રેસ માટે વિનંતી. બીજલભાઈ. નમસ્કાર. આજનો આ કાર્યક્રમમાં જેવો આપણે એમનો જ્ઞાનનો રસ પાથરવાના છે અને આપણે સૌને ટેરિફમાંથી બહાર લાવવાનો માર્ગ જે બતાવવાના છે એવા અમારા મિત્ર માર્ગદર્શક શ્રી વર્મા સાહેબ, જીએફઆરઆરસી ના ચેરમેન અને અમારા ગ્રુપ ચેરમેન અને યાન અને સુરતની ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલું ખૂબ જ મોટું નામ એટલે અમારા ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી ગિરધર ગોપાલ મુંદ્રાજી, અમારા ચેમ્બરના પિલર એવા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ચશ્માવાલા સાહેબ, દિલીપભાઈ ચશ્માવાલા, પીએમ શાહ સાહેબ, અમરનાથભાઈ ધોરા અને અમારી જીએફઆરસી કમિટીના કો ચેરમેન ઉમેશભાઈ કૃષ્ણાની, અતુલભાઈ અને બીજા અમારા ચેમ્બરના સૌ મિત્રો અને આપ સૌ ઉપસ્થિત ઉદ્યોગપતિઓ. ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી વર્સિસ યુએસ ટેરિફ ચેમ્બર પણ કેટલાય દિવસથી ટેરિફમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું અને કઈ રીતે રસ્તો શોધવો એ માટે પ્રયત્ન કરી રહી છે. મારા ખ્યાલથી આ ટેરિફ પર ચોથો કાર્યક્રમ સાહેબ ચેમ્બરમાં આ વીકમાં થઈ રહ્યો છે અને અલગ અલગ લોકો સાથે વિચાર વિમર્શ કરીને ઉદ્યોગપતિઓને નવો માર્ગ કેવી રીતે બતાવવો. કારણ કે આપણે બધા કેવા છે કે કોઈ એક જગ્યા પર રસ્તો બંધ થાય તો તરત બીજો રસ્તો શોધવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ અને એના ભાગરૂપે આજનો આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આજના વક્તા વર્મા સાહેબ કે જેઓ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના ભીષ્મ પિતામાં કહું તો ખોટું નથી, કારણ કે એમણે જેટલો ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો અભ્યાસ કર્યો છે ને તે આપણા બધાનું જેટલું ટોટલ થાય ને એના કરતા પણ વધારે એમનો અભ્યાસ છે. એવા અભ્યાસુ વક્તા જ્યારે આપણી સાથે હોય ત્યારે આ વિષય પર ખૂબ જ સારો પ્રકાશ એવો પાડશે અને આપ સૌને આ ટેરિફના એક હાવમાંથી કેવી રીતે બહાર આવવું એનો રસ્તો ચોક્કસ बताओगे. वर्मा साहब चैम्बर में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सब मित्रों के मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये कार्यक्रम आपको और आपकी इंडस्ट्री को आगे ले जाने में 100% एक बूस्ट मिलेगा, वो मैं खातरी से कह सकता हूं. थैंक यू. થેન્ક યુ વિજયભાઈ. આજે આપણા આંગણે જ્યારે વર્મા સાહેબ ફરીથી એકવાર આવ્યા છે ત્યારે આપણી પરંપરા અનુસાર એમનું પુષ્પહારથી સ્વાગત કરીએ છીએ મેમેન્ટો સાથે. બીજલભાઈને વિનંતી કે મુંદ્રાજી આપી આગે આવી જાઓ તમે. કૃષ્ણ સાહેબ આવો. આશિષભાઈ એક જ મિનિટ બાદ. આશિષભાઈ એક મિનિટ. આવો આશિષભાઈ. આશિષભાઈ આપો. મુન્નાજી તમે ને આશિષભાઈ. So thank you Vijay. Thank you all seniors. Thanks all GFRRC committee members and chairman શ્રી. પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જતા હું વિનંતી કરીશ શ્રી ગિરધર ગોપાલ મુંદ્રાજી કે જે સ્વયં એક મોટા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગપતિ છે,
GFRRC ના એ બેકબોન છે. આજથી લગભગ 11 વર્ષ પહેલા એમણે GFRRC ના મહત્વના ઘટકનું ઉદ્ઘાટન એમના હાથે કર્યું અને એમણે બેકબોન કે એમના થકી આ શરૂ થયું છે. અને આજે અનેક કાર્યક્રમો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના લાભાર્થે જ્ઞાનવર્ધક કાર્યક્રમો થાય છે. એનું શ્રેય એમને આપણે આપી શકીએ છીએ. શ્રી ગિરધર ગોપાલજીને વિનંતી કરીશ કે પ્રસંગોચિત 2 શબ્દો કે અને વિશે માહિતી આપે, સંગઠન અને પ્રવૃત્તિ વિશે. आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान SP वर्मा साहब, चैम्बर के हमारे अति सम्माननीय सेक्रेटरी साहब विजय भाई व पास्ट प्रेसिडेंट श्री व उपस्थित उद्योग जगत से पधारे आप सभी व्यापारी भाई, आज के इस प्रोग्राम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्सेस US टैरिफ के सुविधा आयोजन पर पधारे हुए आप सभी लोगों का खूब हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग एक बड़े मोड़ पर खड़ा हुआ है। वैश्विक व्यापार की दिशा बदल रही है और हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने हमें संदेश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिर नहीं रहते। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उसे पहचानने और अपनाने के लिए तैयार हैं क्या। तो आज इसी बात पर हमने ये सेमिनार रखा हुआ है। हमारे विद्वान वक्ता श्रीमान वर्मा जी इस पर डिटेल में बताएंगे क्या अवसर है, चैलेंजेस से हम कैसे निपटे। अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का सबसे बड़ा खरीदार रहा हुआ है। टैरिफ बढ़ाने से हमारी लागत बढ़ेगी और कंपटीशन भी टफ हो जाएगा। अभी आशीष भाई इस बारे में जानकारी करा ही रहे थे कि काफी होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। खैर, इसके कई रास्ते निकलेंगे। इसलिए आज का ये सेशन विद्वान वक्ता हमारे वर्मा साहब इस बारे में जानकारी कराएंगे कि अमेरिका तो है ही, मगर और हम कहाँ अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आज ही रशिया के प्रेसिडेंट बोल रहे थे पुतिन साहब, चिंता मत करिए, अमेरिका को इस तरफ जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए अवसर तो बहुत है। हमें कुछ चीजें मेरे हिसाब से जरूर ध्यान देने जैसी बातें हैं। जैसे हमें केवल सस्ती प्राइस पर नहीं बल्कि इनोवेशन, डिजाइन और वैल्यू एडिशन पर हमें ध्यान देना होगा। सस्टेनेबल फैब्रिक्स और फास्ट डिलीवरी हमारी ताकत बनना चाहिए। अमेरिकी रिटेल चेन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी कर हम मेड इन इंडिया को मजबूत बना सकते हैं। ये मोदी साहब ने परसों बोला है कि बदलते परिदृश्य में भारत के विकास का मुख्य इंजन घरेलू मांग को ही हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। अर्थात टैरिफ व व्यापार युद्ध के बीच में घरेलू मांग आधारित विकास मॉडल को हमें मजबूत करने की जरूरत है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास व सबका प्रयास को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें अपने निर्यात को केवल अमेरिका पर ही निर्भर नहीं रखना चाहिए, बल्कि यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका व दक्षिण पूर्व एशिया जैसे नए बाजारों में हमें मजबूती से प्रवेश करने की जरूरत है। देश के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें और आगे बढ़ाना है ताकि हम अपने आप को और अच्छे ढंग से सेट कर सकें। बंधुओं, डिजिटल इंडिया में आज भारतवर्ष में नई क्रांति आ रही है, जिसकी चर्चा वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक व सिलिकॉन वैली से लेकर मुंबई के टेक्स पार्क तक हर जगह ये चर्चा का विषय बन रहा है। जब डिजिटल इंडिया जब डिजिटल स्वतंत्रता भारत को मिलने जा रही है, जहां अमेरिका जो पूरे विश्व का डिजिटल बादशाह बना बैठा था, जिसने अपने फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि से पूरी दुनिया को कैद में रखा था, उस चैलेंज को भारत के द्वारा निर्मित गूगल कोमेट कोमेट डिजिटल टेक्नोलॉजी की घोषणा ने चैलेंज दिया है कि जो ग्लोबली हमें नए नए मार्केट खोजने में बहुत ही सहायक होगा। कोमेट एक ऐसी चीज है कि 32 देशों ने अभी इस पर रिकॉग्नाइज किया है, वहाँ रजिस्ट्रेशन जिसको बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 100 देश आगे और तैयारी में है। तो बंधुओं, अधिक ना बोलती हुए मैं तो यही बोलूंगा कि चैलेंजेस को हमें स्वीकार करना है, वह आगे हमें किस्म से आगे बढ़ना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो नए रास्ते बताएंगे वर्मा साहब, उनको अप्लाई करने का प्रयास करना है।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू मुद्रा सर, आपने काफ़ी जानकारी दी। मुझे सब वेट कर रहे हैं अभी सबसे महत्व के जो खिलाड़ी हैं एसपी वर्मा साहब, जो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए परिवार के सदस्य ही है। वर्मा साहब के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी अलग से नहीं देना चाहता कि सब जानते हैं, और जो चेंबर के साथ जुड़े और वर्मा साहब को ना जाने वो एक ताजुब हैरत वाली बात है। वर्मा साहब को मैं कैसे देखता हूँ कि जहाँ जो खुद एडिशनल टेक्सटाइल कमिश्नर रहे और चेंबर का जो टेक्सटाइल का जो नॉलेज फोर्स है, इनका वो एक एडवाइज़र है। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एंड ब्यूरोक्रेट जिसका विजडम ऑलवेज ऑन टॉप। इसके बारे में एक बात मैं कहूँ तो शायद उचित रहेगी कि કૂવો શું છે કે કૂવો જ્ઞાનનો કૂવો, સાદા કૂવામાં પાણી હોય છે અને જ્ઞાનના કૂવામાં નોલેજ હોય છે. નોલેજ એ બહુ તાકાતવર વસ્તુ છે એમ. અને કૂવામાંથી કેવું છે કે જ્યારે પાણી જોઈતું હોય ને ત્યારે લઈ શકાય. હવે બધી બોટલ વોટર આવ્યું, પણ એક જમાનો હતો કે સામાન્ય માણસ ઘેરથી નીકળે ત્યારે દોરીને લોટો લઈને કમસે કમ નીકળતો, અને તરસ લાગે તો લોટો દોરી બાંધીને નાખી દે ને પાણી કાઢી લેતા હતા. એમ જ્યારે જ્યારે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને સુરતના અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને ટેક્સટાઇલના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે ત્યારે વર્મા સર આવે છે અને જે વિષય પર એ સચા એક્સપિરિયન્સ અને વિઝડમ પર્સન છે કે કોઈ બી વિષય પર એક્સપર્ટીઝ એમનું નોલેજ આપે છે અને ચેમ્બર હંમેશા એમનું આભારી રહ્યું છે. હેરતની વાત એ છે કે કૂવા પાસે જે તરસ્યા જવું પડે છે, એટલે કૂવો પાણી પીવો તો કૂવા પાસે જવું પડે છે. વર્મા સર એક એવા કૂવા છે કે જે તરસ્યા પાસે આવે છે અને જ્ઞાનને પાણી પીરસે. અને ચેમ્બરનું સૌભાગ્ય છે કે તુમને પુકારો ઓર હમ ચલે આએ. જ્યારે જ્યારે ચેમ્બરે એમને યાદ કર્યા છે ત્યારે વર્મા સર આવે છે અને આજે ફરીથી એકવાર આપણે આંગણે આવ્યા છે તો સૌ પ્રથમ એમનું તાલીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ અને વર્મા સરને વિનંતી કરીશ કે આપના જ્ઞાનને अनुभव लाभ आपको. वर्मा सर. एक हाँ, आज हमारे साथ में हमारे पास प्रेसिडेंट से महेंद्र भाई काजीवाला उपस्थित हुए थे. मैं उनकी हाजिरी की नोंद ले रहा हूँ. हमारे दूसरे पास प्रेसिडेंट और हमारे टेक्सटाइल फोर्स के टेक्सटाइल टास्क फोर्स के चेयरमैन है ऐसे, और सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के लिए जिनको हर हमेश कुछ न कुछ चिंता रहती है, ऐसे आशीष भाई गुजराती को भी मैं स्वागत करता हूँ. आशीष भाई गुजराती और महेंद्र भाई खादी. यस सर, फ्लोर इज योर्स. थैंक यू विजल भाई जी, थैंक यू मुद्रा साहब और हमारे सारे दोस्तों. आज एकदम से एक समस्या खड़ी हुई है जिसके विचार विमर्श के लिए. हालांकि आज ये शायद मेरी पूरी ज़िंदगी का ये पहला दिन होगा कि प्रेजेंटेशन में बैठ के देने जा रहा हूँ क्योंकि पोडियम नहीं है, तो शायद उतना फ्लो नहीं जम पाए. पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो जानकारी आप लोगों को चाहिए, क्या कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, मुझे जितना भी बन पड़ा इस बीच में बेस्ट निकाल के आप लोगों को वे आउट भी इसमें सजेस्ट कर रहे हैं. सो आपका बस इसमें थोड़ा ध्यान चाहूँगा. ये यूएस मार्केट, जैसे भी मुद्रा साहब बोल रहे थे या आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस मार्केट हमारे टेक्सटाइल्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है. अगर हम टॉप 10 एक्सपोर्ट कंट्री देखें इंडिया की, तो यूएस के साथ में हमारा देखें कितना बड़ा जो है 10 मतलब बिलियन का एक्सपोर्ट होता है पर एनम एवरेज. मतलब 10-11 बिलियन का अगर हमारा होता है, बाकी कंट्रीज़ के सामने मिला के भी वो हमारा नहीं है जितना यूएस अकेला हमारे से ट्रेड करते थे. तो आज जो चिंता बढ़ी है कि अगर टैरिफ बढ़ गया तो जो हमारा इतना जा रहा था एक्सपोर्ट, सो वो कहाँ पे जाके खड़ा होगा, तो ये चिंता स्वाभाविक है. भाई साहब फोटो मत लीजिए, ये सब चैम्बर में मैं दे के जाता हूँ, प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा. मैं कभी सब चीज़ यहीं छोड़ के जाऊँगा. बढ़िया सर. अच्छा, अब इसमें दूसरा चीज़ अगर हम देखें कि हमारे अगर हम और उसमें डिटेलिंग में जाएं कि क्या क्या चीज़ इसमें से हमारा
एक्सपोर्ट अलग अलग होता था, अगर हम कैटेगरी वाइज भी देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे जो है अप्रैल्स नीट वेयर्स में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। मेडल्स जो होम टेक्सटाइल्स के लिए बात करते थे वो सबसे दूसरी कैटेगरीज में ज़्यादा थे, और रादर होम टेक्सटाइल्स और नीट अपैरल्स वो मैं आगे आपको कैटेगरी वाइज दिखाऊंगा। ये डाटा में अब ज़्यादा उलझते नहीं, जैसे एक टेंटेटिव की क्या अलग अलग आइटम फाइबर वाइज HSN कोड वाइज क्या क्या यूएस मार्केट में हमारा 10 बिलियन 11 बिलियन में जा रहा था, वो मैंने एक डाटा समझने के लिए रखा हुआ था। सो जैसा मैंने बोला कि यूएस हमारे लिए इम्पोर्टेंट था RMG के लिए, दूसरा होम टेक्सटाइल्स के लिए। और इसमें जो है अगर हम लास्ट ईयर के भी डाटा देखें तो करीब 8.7 बिलियन का जो है RMG ही एक्सपोर्ट हुआ था। अगर 24 अक्टूबर अप्रैल से अक्टूबर 24 की हम बात करें, और 7 बिलियन का करीब जो है कॉटन टेक्सटाइल्स, उसमें जो मेडल्स आप ले लीजिए और भी ले होम टेक्सटाइल्स वगैरह आइटम ले लीजिए, तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी ही आगे जा करके बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्यों आने वाली है ये आपको आगे डाटा में दिखेगा। अब चूंकि हम सूरत में बैठे हुए हैं तो प्रायोरिटी हमारी ये रहती कि जहाँ जिस इंडस्ट्री क्लस्टर में बैठे हैं तो वो इंडस्ट्री क्लस्टर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो पहले तो हम ये देख लें कि MMF क्या जा रहा था यूएस में। तो सामने जैसे हमने $11 बिलियन का जो हमने देखा, $11 बिलियन के सामने अगर हम MMF में देखें, यूएस मार्केट में हमारा 1 बिलियन का एक्सपोर्ट था, मतलब हार्डली बहुत कम MMF में जा रहा था। तो सूरत एज ए होल जो अगर हम देखें कि सूरत प्रोडक्ट एज ए होल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो थोड़ा उतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दिया जितना कि कॉटन टेक्सटाइल्स में ज़्यादा आ रहा है। दूसरा जो MMF कैटेगरी में भी अगर हम देखें कि आइटम वाइज में भी क्या जाता है, तो मैं HSN कोड जो निकाला इसमें भी आप देखेंगे कि मेनली फिलामेंट और आपके जो है पॉलिएस्टर यान वगैरह जो है फाइबर्स वगैरह स्टेपल फाइबर ही ज़्यादा है। बेड लिनेन वगैरह की भी क्वांटिटी आप देखेंगे बहुत कम है उसके सामने में। सो MMF एज ए होल मुझे उतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा जितना कॉटन सेक्टर को ब्लो आएगा इसमें। इसके आगे अगर हम देखें कि जो दूसरा डाटा है, अगर MMF क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, दूसरा हमारा सबसे बड़ा MMF कंजम्पशन होता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी जो है हमारा करीब 1 बिलियन के आसपास, 1 बिलियन भी पूरा नहीं है लेकिन 1 बिलियन के आसपास जो टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन उसमें भी अगर हम कैटेगरी वाइज भी देखें तो हमारा जो है वोवन फैब्रिक्स जो लाइक में वो अभी कैटेगरी में जा रहा है, पूरा स्पेसिफाई कोड नहीं है। एंड इंटरमीडिएट जो बल्क में जो 2 क्वांटिटी फर्स्ट 2 अगर आप देखेंगे वही केवल टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जा रहे हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हालांकि जो मेजर जो जा रहा था जियो टेक्सटाइल्स बहुत यूएस से जाता है, बट मैंने जो डाटा पूरे खंगाले वो किस कैटेगरी में HSN कोड में या दूसरे में जा रहा है, बट निकल के नहीं आया है डाटाबेस के ऊपर कि जियो टेक्सटाइल जो इंडिया से जा रहा है वो किस कैटेगरी में जा रहा है यहाँ से, क्योंकि ट्रेड एक अलग तरह से बिहेव करता है, वो HSN कोड एक अलग तरह से टैरिफ के बेस के ऊपर वो लोग बिहेव करते हैं। तो उतना मुझे नहीं निकल के आया क्योंकि यूएस इंडिया जो एक जियो टेक्सटाइल्स का सबसे बड़ा मार्केट उभर रहा था यूएस में, सो वहाँ अभी भी मुझे दिख रहा नहीं इस डाटा में कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो यूएस टैरिफ की अगर हम टाइमलाइन देखें तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था अप्रैल तक। जुलाई में आकर के ट्रम्प साहब को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने पहले 25% ड्यूटी लगा दी। हालांकि सबको अभी मालूम पड़ गया क्योंकि आजकल मीडिया में सब लोग रहते हैं तो मालूम है कि वो क्यों टैरिफ लगा रहे हैं। कुछ उनको भी अपने उत्पाद जो है इंडिया में ज़बरदस्ती खपाने हैं और उस थ्रेट को लगाने के लिए उन्होंने हमारे वो आइटम्स के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया जिसमें हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और अगस्त में तो इन्होंने मतलब वो बोलते हैं ना कयामत ही ढाने का प्रयास किया है। हम कयामत नहीं बोलेंगे क्योंकि कयामत तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे हम इंडियंस को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वे आउट कैसे होगा उसको। और अभी मुंद्रा साहब ने बोला ना, रसा ने भी ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है। एंड रसा हमारे लिए क्यों बड़ा मार्केट होगा वो भी मैं आगे कैसे होगा वो आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्लाइड में वो भी इंक्लूड किया हुआ है। अगर हम
ये देखें कि भाई क्या टेक्सटाइल्स के अलावा और क्या क्या सेक्टर्स में यूएस टैरिफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो देखिए श्रिम्प जो हमारे झींगे जाते थे उसमें उन्होंने 50% वाली, कारपेट्स हमारे जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इफेक्टेड है, ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी उन्होंने डाला हुआ है 54। जहां हम सोचते थे कि ऑर्गेनिक का धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा और वो वहां पे जाके ऑर्गेनिक का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वहां उन्होंने 54% का टैरिफ ऑल टुगेदर डाला हुआ है। कारपेट में 53% का आ गया। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो मैं बोल रहा था अप्रैल नीटेड, जो हमारा तिरपुर का सेक्टर है, जो नीटेड अप्रैल जा रहा था यूएस की मार्केट में, 63.9 समझो 64% का टैरिफ ऑल टुगेदर उसमें आ रहा है। और वोवन अप्रैल में 60.3% का आ रहा है, और मेडअप 59 जो होम टेक्सटाइल्स की हम बात करते हैं। सो उन्होंने देखो स्मार्टली टैरिफ में उन्होंने क्या किया, फार्मा और स्मार्टफोन्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर उन्होंने जीरो अभी भी रखा हुआ है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, जहां वो वीक है। तो टेक्सटाइल्स इन ऑल टुगेदर हम देखें कि टेक्सटाइल्स सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है यूएस टैरिफ के हिसाब से। अब इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या कितना पड़ेगा, कि अगर हम टोटल इम्पैक्ट देखें तो इंडिया करीब जो है 34 बिलियंस का जो एक्सपोर्ट जो हमारा इसमें जाता था, उसमें 2.5% जीडीपी जो हमारी इंडिया की थी वो टोटल इम्पैक्ट में आ रही है। और उसकी क्या होगा कि जो जितने भी हमारे यूएस मार्केट में अगर हम तिरपुर क्लस्टर देखें या हमारे होम टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री देखें, तो मेजर भले ही बड़े प्लेयर्स थे सामने में, लेकिन उसके पीछे इतने एमएसएमई हमारे लगे हुए हैं कि हमारे करीब करीब 75% एमएसएमई उसमें इफेक्ट होने वाली, जो कॉटन वैल्यू चेन में काम कर रही थी। क्योंकि होम टेक्सटाइल्स को बहुत बड़ा ब्लो आने वाला, उसको आगे थोड़ा गवर्नमेंट ने भी टेम्परेरी रिलीफ देने की कोशिश की है, वो मैं उसको भी आपको बताऊंगा। सो ये चैलेंजेस और कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी आपको बात कर लिया, इसके लिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ऑल टुगेदर जो मैं बोला था कि जो मेजर हमारे टेक्सटाइल्स की हम देखें, सो वो ये हमने जो 4 मेजर कैटेगरीज हैं, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा टैरिफ के रेट आ रहे हैं। पूरे टोटल मिला के सारे टैरिफ, भले ही 50% आप कहने को हैं, लेकिन मीटेड में आप देखिए 64, 61 वोमेन अप्रैल में, होम में 59% एंड कारपेट में 52.9 मतलब 53%। एक मैंने इसमें टाइटल देखे है, टैरिफ आर नॉट वॉल्स दे आर स्टार्ट पिस्टल्स। क्यों ये वर्ड लिखा हुआ है, कोई इमेज करेगा, इसका बताएगा? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और नया अपॉर्चुनिटी ढूंढो, और क्या। टैरिफ ऐसा है कि ये देखिए, किसी कंट्री को अपने हिसाब से काम करना होता है, तो ये आज से नहीं। जब WTO के नेगोशिएशंस हो रहे थे 1995 में, तभी हमने उस समय बोला था कि नॉन टैरिफ बैरियर्स आने वाले समय में कोई भी कंट्री उठा करके इस तरह से लेकर के आएगा कि आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री का जो एडवांटेज है वो पूरा खत्म कर सकता है। सो वो सामने जैसे आदमी खड़ा है, वो पिस्टल के चला करके खत्म कर देगा, बाद में आप जिंदा हुए, बच गए, क्या हो गए। तो ये ऐसा ब्लो आता है कि सामने एक आपने टैरिफ यूएस का लगा दिया, सबसे ज्यादा आपका एक्सपोर्ट हो रहा था, और उसमें सडन आप ब्रेक लगाएंगे तो डाइवर्जन में आपको टाइम लगेगा। एकदम से तो आप ये है नहीं कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम बॉम्बे जाना था, पकड़ लिया गाड़ी चेन्नई वाली, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। सो ऐसा नहीं होता है। ट्रेड को अगर चेंज ओवर लाना है तो उसमें 5-6 महीने का हमें टाइम चाहिए। दूसरा जो अलार्मिंग मैंने इधर डाला, अलार्मिंग न्यूज ये है कि इंडिया चाइना का जो नेगोशिएशंस है, एंड चाइना ने अपनी तरफ से कर्ब लिफ्ट किया, लेकिन जो ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं वो हमेशा वो कंट्री, हम हर एक कंट्री चाहता है कि कुछ ना कुछ हमारे फायदे के लिए हो, एंड टेक्सटाइल चैप्टर उसमें उन्होंने डाला हुआ है। हमारी वरीज यहाँ पे है कि एक तरफ यूएस है, दूसरा तरफ अगर चाइना का भी टेक्सटाइल्स हमारे लिए कहीं ओपन हो गया, तो आज जो चोरी छिपे ट्रेड वाया रूट से आ रहा है, कल वो आने लगा तो हमारी इंडियन टेक्सटाइल्स कहाँ खड़ी होगी। तो वो आज से हमको समझ के चलना होगा कि इसको कैसे हमें चीज़ों को, और वो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, वो स्ट्रेटजी क्या होंगी मैं आगे आपके बताता हूँ। अब ये कंट्री वाइज देखें, अगर यूएस टैरिफ का जो टेक्सटाइल उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे,
तो सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर देखेंगे 50% इंडिया के ऊपर ऑल टुगेदर, वो अलग मैंने आपको बताया। चाइना 30%, पाकिस्तान 29%, बांग्लादेश 20%, सबसे कम टर्की। लेकिन टर्की इसके लिए ज़्यादा थ्रेट नहीं, क्योंकि होम टेक्सटाइल्स के अलावा उनकी और कहीं प्रेजेंस है नहीं। सो मेन था गारमेंट में, जो वोवेन गारमेंट है वो बांग्लादेश था। नीटेड गारमेंट में स्टिल उनकी इतनी कैपेसिटीज और अच्छी नहीं थी। लेकिन चाइना हमारे लिए एक है कि मार्केट में कैसे आगे करेंगे। अब ये यूएस इंपोर्ट के डाटा अगर हम देखें कि लास्ट 3-4 साल का डाटा एनालाइज किया, तो चाइना वियतनाम का अगर हम CAGR चाइना का देखें, जो लोग आप बोलते थे कि चाइना इज वैकेटिंग द स्पेस, तो आप CAGR देख लीजिए, चाइना से अभी धीरे धीरे एक्सपोर्ट कम हो रहा है, उसका -9.42% CAGR आ रही है। वियतनाम, जो बहुत लोग आप बोलते हैं मीटिंग में कि नहीं साहब वियतनाम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, बट स्टिल उसका CAGR 3.34% निकल के आ रहा है। और इंडिया का CAGR 9.15 था। ट्रम्प साहब ने यही दिमाग लगाया कि अगर 9.15 CAGR आपका टेक्सटाइल्स में इंडिया से बढ़ रहा है, जो चाइना स्पेस वैकेट कर रहा था, रियल में हम उसको बहुत ही तेजी से पकड़ने जा रहे थे, बट सडन ये एकदम से ब्रेक लगाना पड़ गया टैरिफ की वजह से। 9.15 CAGR बहुत मायने रखता है कि अगर कोई कंट्री की टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट उस मार्केट में ग्रो कर रही है। उसके सामने जो CAGR अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो मतलब नंबर 1 CAGR जो बढ़ रहा था इटली का, बट इटली अगेन मेरा मानना है कि इटली से ओनली डिजाइनर प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं बजाय कि रेगुलर टेक्सटाइल्स आइटम। सो वो इतना बड़ा थ्रेट हमारे लिए नहीं है। हाँ, बांग्लादेश का CAGR स्टिल उनका मेंटेन है 8 पॉइंट, जो हमारे से लगभग बराबर था। बस अगर डिस्टरबेंस उनका इसी तरह कंटिन्यू रहा, बट अगेन हमारे पास में इतना टैरिफ ब्लो आ गया, सो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा वो आगे हम उसके लिए बात करेंगे। और इसमें मैंने एक ब्रैकेट में वर्ड 3-4 जो कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं कि जो CAGR अगर अच्छा चलता है, होंडुरास, निकारागुआ एंड जॉर्डन, ये आप जरा ध्यान में रखें, क्योंकि आगे की स्लाइड में जो मैंने इसका निकाला हुआ है, ये लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज लाइक इंडिया है। सो इनसे थ्रू हम कैसे चीज़ों को आगे अपने एक्सपोर्ट को इफेक्ट होने से बचाएंगे, वो आगे आपको एनालिसिस में बताते हैं। अब ये जो सबसे ज़्यादा मैंने एक निकाला जो US में जाता था, कितना क्वांटिटी, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सेक्टर है नीटेड एप्रिल्स में। सो वहाँ भी देखिएगा कि चाइना वियतनाम के बाद में आपका जो है लगभग नहीं, बट ज़्यादा है ना, उसका इंडिया से बहुत ज़्यादा है। सो अप्रैल्स में वियतनाम उसका मतलब बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो सीरीज मैंने उसे नहीं जम पाई। चाइना से नंबर 1 है, वियतनाम नेक्स्ट है, इसके बाद फिर बांग्लादेश से थोड़ा हमारा ये इतनी क्वांटिटीज है। ये केवल नीटेड का जिसमें 64% की ऑल टुगेदर टैरिफ आ रही है। अब मैं इसको कैसे, अब ये चीज़ें आपको थ्रेड्स बता दी, अब ये आगे कैसे हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है कि आगे अगर हमें मार्केट सर्च करनी है, कुछ हमने येलो से किया हुआ है। हमारा जो कैलकुलेशन है कि टोटल पॉपुलेशन कंजम्पशन टेक्सटाइल्स का वही होगा जहां पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अब इसमें देखिए कि चाइना, इंडिया और चाइना के बाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है US में है। वर्ल्ड परसेंटेज भी मैंने डाला, मिलियन ऑफ पीपल डाला है। और ये पॉपुलेशन, जहां ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं, उन कंट्री को अभी हमें बेस बना करके अपने चीज़ों को आगे लेके जाना पड़ेगा, जो हमारी नेक्स्ट स्थिति होना चाहिए। और इसीलिए मैं वहाँ अभी आज सुबह भी डिस्कशन में बोल रहा था कि जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले इथियोपिया को बेस बनाया अपने कन्वर्जन के लिए, मेडल्स या गारमेंट कन्वर्जन के लिए, आज शायद वो इमीडिएट बेनिफिशियरी वो लोग हैं जिन्होंने अपना बेस इथियोपिया या घाना या और भी केनिया वगैरह में जाके बनाया, कि वहाँ से आज भी US टैरिफ बहुत कम है। तो अगर यहाँ से वो माल लेके करना, उनके पास कंट्री ऑफ ओरिजिन का आएगा केस, ना कुछ आएगा। बट अगर हमें मार्केट बढ़ानी, इसके बाद में आप US इसमें देखिए कि रसिया भी 146, मैंने उसको नहीं बनाया क्योंकि वो आज की ही डेवलपमेंट है, कल का प्रेजेंटेशन फाइनल किया था।
सो रसिया भी अगर हमारे सामने मार्केट में खड़ा होता है तो एक बहुत अच्छे एडवांटेज अभी हमें ऐसे कंट्रीज में करना जहां लोग बाग हैं। दूसरी स्लाइड ये मैंने निकाली थी, ये IMF की वेबसाइट से मैंने निकाला था। इन्होंने ये बड़ी अच्छी वेबसाइट भी की है कि इनकम ग्रुप बाय रीजन कंट्री, जितना ये डार्क ग्रीन है ये सारे हायर इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, जितने ये आपके पैरेट कलर वाले जितने भी हैं ये आपकी जो है लोअर ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। तो मतलब हमें जो है अगर US छोड़ दें तो जो हायर इनकम ग्रुप का जहां से हमें पैसा मिलेगा, US हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा पैसा वहां से मिलता था। तो अगर उस कंट्री के सामने हमें कहीं खड़ा करना है तो हमें उसी के सिमिलरली प्लेस्ड कंट्री को ढूंढना पड़ेगा, और वो कौन कौन से कंट्री हैं वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं। पॉपुलेशंस के हिसाब से भी दो अलग अलग टेबल हैं इसमें कि हायर इनकम कंट्रीज में कितना है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, और इसी तरह से हाईएस्ट इनकम ग्रुप का पहला वाला टेबल है, सेकेंड टेबल है हायर इनकम ग्रुप वाले कंट्रीज में। और पर्टिकुलरली मैंने जो ये किया हुआ कि जो अभी मुंद्रा साहब भी बोल रहे थे कि नाउ वी हैव टू कंसंट्रेट फॉर इंक्रीजिंग अवर एक्सपोर्ट टू द सदर्न लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एज वेल एज अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये क्लियर कट इससे निकल के आ रहा है कि वहाँ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पॉपुलेशन भी है, प्लस उनका टैरिफ भी US के सामने कम है, प्लस वहां पे उनका इनकम ग्रुप भी इवन तो हमारे से अच्छा उनका इनकम ग्रुप है। दो ही टेबल इसीलिए डाली हैं, जबकि ये पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ जो इवन तो इंडिया भी हमारा जो है लोअर इनकम ग्रुप में आता है, लोअर मिडिल में। सो हमारे से जो बेटर पोजीशनिंग है जहां हमें पैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मिल सकता है हमारे प्रोडक्ट को, अभी हमें वहां कंसंट्रेट करने की जरूरत है। साथ में जो मैंने अगर GFRC के जो पहले प्रोग्राम हुआ था मैंने एक्सपोर्ट के ऊपर डिटेल बताया था कि हमारे ऑलरेडी 14 FTA एग्जिस्ट कर रहे हैं। चाइना क्या एडवांटेज लेता है, उसके यहाँ का आपने माल रोक दिया, वो वाया दूसरे जितने भी आपने FTA करके रखे उन कंट्रीज में जाके बेस बना के सप्लाई कर रहा है, यही हो रहा है। वही स्थिति हमें करना है। हमारे 14 FTA ऑलरेडी हैं, अभी वो FTA को बेस बना के अभी हमें नई स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी कि US मार्केट को हम कैसे अनडिस्टर्ब छोड़ें। सो कंक्लूसिव क्या निकलता है, इंक्रीज एक्सपोर्ट टू UK, UAE, जापान हैविंग 100% FTA, कोई ड्यूटी नहीं और मार्जिनल ड्यूटी। हमें थोड़ा अपनी बेस स्ट्रेटजी में यहां करना पड़ेगा। एक्सप्लोर न्यू मार्केट लाइक साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में मैं क्यों पर्टिकुलरली नाम ले रहा हूं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारा श्रीलंका बगल में बैठा हुआ है, उनके पास स्टिचिंग बेस बहुत अच्छा है। हमें अपनी अपॉर्चुनिटी उनके साथ एक्सप्लोर करनी है कि भैया तुम्हारा US के साथ में बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम आपको कपड़ा देते हैं, कन्वर्ट करो और कंट्री ऑफ ओरिजिन लगा करके आप भेज दीजिए। सो ये नए हमें अपने पार्टनर्स तलाशने पड़ेंगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का जो है क्या क्या इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, जो मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो मेरी रखी हुई है, अगर MMF सेक्टर को साथ में लेके चलें या हम कॉटन के लिए बात करके चलें, क्योंकि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कभी नोटिफिकेशन 3 दिन पहले निकाली है जिसमें उन्होंने जो कॉटन इंपोर्ट के ऊपर 11% ड्यूटी जो है उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है, बट दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे होंगे जैसे आपके अरविंद हो गए या वेलिस्पन हो गए, लेकिन दैट इज ए टेम्परेरी रिलीफ। हमें करना है ड्यूटी कम करना है तो एटलीस्ट बाय द टाइम US टैरिफ कम करे या 6 महीना मिनिमम अगर हम रखें तो हमारी इंडस्ट्री एज ए लार्ज कॉटन में इफेक्ट हो सकती है। इसी तरह हमने बोला अलाउिंग ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स, फाइबर्स एंड या नॉट फैब्रिक्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ विदाउट एनी QCO रिस्ट्रिक्शंस। हमें QCO रिस्ट्रिक्शन लगा के बगैर इंपोर्ट गवर्नमेंट को अगर इमीडिएट अलाउ करें, आई एम श्योर हमारी इंडस्ट्री उसको विन ओवर कर लेगी। दूसरा, इनहेंसिंग रोड टैप, जो गवर्नमेंट अभी एग्जिस्टिंग
1.5% से लेके 4% तक अलग अलग फाइबर बेस के ऊपर है, उसके ऊपर 5% और टॉप अप कर दे, 10% ड्यूटी ड्रॉबैक हमें दे दे खाली यूएस मार्केट के लिए जो फैब्रिक और अप्रैल जा रहा है। मेरी कई एक्सपोर्टर से बात हुई, बोले सर 25% तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एडिशनल 25% लगाया है, सरकार हमें 10% ड्यूटी ड्रॉबैक भी दे देगी तो भी हम नेगोशिएट कर लेंगे। क्योंकि जो रेपुटेशन इंडियन एक्सपोर्टर्स ने वहां की मार्केट में बनाई थी, सो उनके डिमांड है, बट कॉस्ट वेरिएशन इतना आएगा तो वो डेफिनेटली वो दूसरे कंट्री की तरफ देखना चालू करेंगे, तो टेम्परेरी इसीलिए उन्होंने होल्ड पे जितने भी ऑर्डर्स थे वो लगा रखे हैं। दूसरा जो हमें, क्योंकि पैसे का इश्योर नहीं होगा, तो इमीडिएट हमें जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम जो गवर्नमेंट की चलती है उसमें हमें 5% इंटरेस्ट रिम्बर्समेंट अलाउ कर दे, सो दैट वर्किंग कैपिटल एक्सपोर्टर्स का बढ़ा दे। अगर वो बाकी सबके लिए नहीं फ्री कर सकते हैं तो ये सारी डिमांड चाहे चैम्बर करें या कोई भी करें, आप लोगों की तरफ से मेरे हिसाब से देना चाहिए। क्योंकि मैंने कई रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं कि जो अलग अलग सिटी साइमा वगैरह सबसे गए हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें भी मिसिंग है। तो मेरा ये मानना है कि एज ए चैम्बर है जो होल, ये अगर 5 जो मैंने पॉइंट यहाँ डाले हैं, इन सबको जो है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करिए कि भाई अगर ये अनअफेक्टेड हमें करना है तो हम दूसरा बेस ढूंढ लेंगे, जो हम अपने दूसरे पार्टनर्स ढूंढ लेंगे सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट। अगर यूएस मार्केट का लिंकेज हम देते हैं वहां के लिए तो ये चीजें हमें अलाउ करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएट बेसिस पे। सो कंक्लूसिव रिमार्क जो हमारा ये आता है, जो अभी मुंद्रा साहब ने बहुत ही उसमें अच्छी तरह बताया, मेक एट स्केल, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, जीरो एक्सक्यूजेस। ये लेके नहीं चलने का कि भाई साहब ये तो अभी यूएस ने टैरिफ लगा दिया, इसने ये कर दिया, उसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। करना है, और जो चीज अगर आपकी अच्छी होगी तो कोई 10 पैसे ज्यादा देके भी आपसे ले जाएगा। चाइना का पार्ट जो मैंने पहले आपको दिखाया, चाइना का शेयर क्यों इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया कंसिस्टेंट क्वालिटी देना सप्लाई चालू कर दिया था, 9% CAGR बढ़ रहा है। इसके लिए बोला था डाटा वहां ध्यान रखना। तो क्वालिटी आपने प्रूव कर दी है, चीज आपने प्रूव कर दी है, अब रहा पैसे का सवाल। तो जब पैसा ज्यादा होता है तो अगर आपका माल अच्छा होता है तो घूम फिर करके लोग आपके दुकान पे आते ही आते हैं, भले कितना भी महंगा आपने रखा। आप इंडिजियस, आप यहाँ डोमेस्टिक मार्केट का देखिए, कस्टमर आपके कम होंगे लेकिन घूम फिर के अगर आपकी चीज अच्छी है तो वहां आएंगे। इसीलिए मेक इट स्केल। स्केल क्यों बोल रहा हूं, आपकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा आप क्वांटिटी में बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड जीरो एक्सक्यूजेस। मूव अप इन द वैल्यू चेन, आपकी खुद की जो है ऑन आईपीस आप डेवलप करिएगा। वो बोलते हैं कि यूएसपी आपकी क्या है, तो यूएसपी आपकी खुद की बनाइएगा। दूसरे की कॉपी करने जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, दूसरे सब कर रहे हैं। और ऐसे 2 लोगों से मैं मिला इस बीच में पिछले 10 दिन के अंदर, वो बोलते हैं सर उनको 50 नहीं 100% टैरिफ भी डाल दो, माल वो हमारे से वहां के लोग बाग लेके जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास अगर हमने अपने आप में लेके आ गया। और हमारे गुजरात के ही 2 लोग, अहमदाबाद में बैठा हुआ एक बंदा जो है वो बोलता साहब उनको 100% टैरिफ डाले, माल मेरे ही उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि ये चीज वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। यूएस वाले। सो हमें उस लेवल पे अपने आप को सिक्योर करना। तुम यार कहाँ जाओगे, घूम फिर के हमारे आओगे, क्योंकि तुम बढ़ा लो ना, तुम्हारे कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा जो हमें करना है, ब्रांड्स मैंने लिखा, तो ब्रांड तो इतना जल्दी बनेगा नहीं, बट जो मेरा ये मानना है कि जूडियो जो हमारी कंट्री का जो है यंग जनरेशन, में बार बार बोलता हूं, दे आर अट्रैक्टिंग टू द फॉरेन ब्रांड्स। माल हमारा ही है, टैग उनका है, मार्जिन वो हमारे से लेके जाते हैं। 60% अगर टोटल हम एनालिसिस करते हैं तो 60% जो टोटल प्रॉफिट मार्जिन है वो ब्रांड्स लेके जा रहे हैं। 40% तो केवल हमें वो बोलते हैं ना कि मजदूरी काम का पैसा दे के चले जाते हैं लोग, और ऐसा निचोड़ के लेके चले जाते हैं। सो यहाँ ब्रांड्स, जैसे हमारा खुद का इंडियन ब्रांड अभी जूडियो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, अगर उसमें हम जो जहां हमारी यंग जनरेशन भी लग रही है
और उसको भी अगर हम कंसिस्टेंट, और वो जो चाइना से माल उठा करके कन्वर्ट करा के वो दे रहे हैं, या ट्रेंड्स वाले भी दे रहे थे, ये थोड़ा अगर रिस्ट्रिक्शंस हमारे खुद के ब्रांड्स अगर डेवलप करना चालू कर दें, हमारे बच्चों को भी रोकना चालू कर दें, तो यूएस का मार्केट अपने आप, यूएस जो ब्रांड्स है ना, उनकी मार्केट अपने आप खराब हो जाएगी। फ्रिक्शन जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसमें हमें रिस्पॉन्ड टाइम बहुत अभी इंपॉर्टेंट होगा। टाइम मिला, निकाला माल, कन्वर्ट करवाया, फेंक दिया उधर पे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जितना भी यूएस मार्केट का था, मैक्सिमम क्या होता है, सितंबर तक शिपमेंट होता है मैक्सिमम। सितंबर के बाद वो जनवरी तक थोड़ा सो जाते हैं, अपना त्योहार मनाते हैं। तो ये 3-4 महीने का हमारे पास जो ग्रेस पीरियड है, इन केस चलो वो 50 से 25 नहीं किए, तो भी हमारे पास में 4 महीना स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने में, नए पार्टनर ढूंढ के चैनल क्रिएट करने में बहुत अच्छा समय है मेरे हिसाब से। अगेन वी कैन विन ओवर। थोड़ा ये होगा जी, प्रॉफिट मार्जिन जो हम डायरेक्ट बेच रहे थे थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा ये शेयर करना पड़ेगा। बट वो सामने से जिसको लेना है वो भी ढूंढते हुए आएगा, पहले आपको निचोड़ने की कोशिश करेगा कि नहीं अब तो ये नहीं बनता है, आप बोलो कि नहीं है भैया चले जाओ, हमारा दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया है, तो आप ही के पास घूम के आएगा, ये मेरे से आप लिख करके ले लो। तो मार्केट आपकी जो क्वालिटेटिव मार्केट बनी है, वो कहीं माल उनको चाहिए, ये केवल हाथ मरोड़ने वाले धंधे हैं। सो उसमें हमें क्विक रिस्पांस का भी टाइम, हमारा लॉजिस्टिक भी हमारे बिल्कुल इतना होना चाहिए, मिला चीज भेज दिया, जो चाइना करता है। अपॉर्चुनिटी मिली, अब उनका 5 दिन का रिस्पांस टाइम है, हमें उससे भी घटा करके अगर 5 दिन उसके बराबर तो लेके आ जाए 5 दिन, हमारा लीड टाइम जो है 1.5 महीने का अभी भी है। तो 1.5 महीने का लीड टाइम को हमें घटा के, मैं ये नहीं बोलता कि एक दिन में आप आ जाइए। तो हमारी लॉजिस्टिक भी चीजें ऑलरेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बहुत अच्छा तरह से डेवलप हो रहा है और ये आगे बढ़ेगा। स्मार्ट इंसेंटिव की मैंने गवर्नमेंट की बात कर दी, रिवार्ड प्रोडक्टिविटी, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल पीएलआई के बाद था, बट नॉट एक्सपेक्टेड, पहले से नहीं था, क्योंकि वहाँ दिमाग लगाने वाले अभी कोई नहीं बैठे हुए। ये बड़ा अच्छा समय था, अगर पीएलआई में भी गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन दे देती तो शायद हमारा एमएमएफ वाला सेक्टर इसमें बूस्ट कर सकता था। जो कुछ बात नहीं, सो वो उन्होंने पुराना का पुराना रखा और प्लेन वर्ड में कल बता दिया कि नहीं साहब कुछ भी नहीं है, वही पुराना है। जो अरे उसी वजह से तो लोग बाहर निकल गए थे। रखा होता तो हमारे जो लोगों ने इतना 300-300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एप्लीकेशन दिया था, वो क्यों बाहर जाते। तो ये थोड़ा सोच करके उन्हें रीलॉन्च करना चाहिए था, बट फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं करने की कोशिश की। स्किल एट स्पीड जो बार बार बोलता हूँ, हमारा अभी भी आउटपुट जो है बहुत कम है। पर पर्सन आउटपुट देखें तो हमारे जो कोरिया और जापान और चाइना के आउटपुट के सामने हम अभी भी 19-20 नहीं, अभी हम 17-21 पे हैं। तो वो स्किलिंग हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट में जब हम लेके आ जाएंगे, इसीलिए चैम्बर में डिफरेंट फोरम में हम बार बार स्किलिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं कि स्किलिंग, और स्किलिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ लेबर काम करेगा, ये मैनेजरियल स्किलिंग तक की बात आती है। इसीलिए नीचे ब्रैकेट में मैंने डाला हुआ कंक्लूसिव में, गवर्नमेंट जॉब सिंप्लीफाई कर दो सारी चीजों को, तुम्हारा क्यूसीओ रॉ मटेरियल के ऊपर अभी थोड़ा साइड में रख दो, इनेबलर बन जाओ। सपोर्ट करने वाला गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए। इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर लेगी, आई नो द स्ट्रेंथ। बहुत अपने बीच में ऐसे लोग हैं कि उनकी क्वालिटी अभी भी कहीं नहीं है। इंडस्ट्री का काम इन्वेस्ट एंड डिलीवर टाइमली, और इंडिविजुअल्स एंटरप्रेन्योर्स का काम, चाहे वो वर्कर हो, एज ए जॉब देने वाला, एज ए फाउंडर्स, वर्कर्स बोलो और क्रिएटर, टर्न प्रेशर इनटू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के ऊपर आप इनोवेटिव चीज लेकर के आ जाइए, दुनिया में कहीं नहीं है। उतने छोटे छोटे लॉट के उतने इनोवेटिव प्रोडक्ट, उतने अच्छे प्रोडक्ट कहीं नहीं है। यूएस क्या, सारे दुनिया आपके पास आएगी घूम फिर के, उनको करने दो। इसीलिए अब समय है लेस नॉइज मोर इनवॉइसेस। सो ये आज से हम थीम बना लें, शोर कम करें, समझें, नए पार्टनर ढूंढें, चैनलाइज करें चीजों को, और इनवॉइस ज्यादा से ज्यादा बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।
Thank you so much, Verma sir. Very informative session. मेरे ख्याल से अभी हमारे पास टाइम है, we can go for question and answer. हाँ, yes, question. तो आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो कृपया हाथ ऊंचा करके वन बाय वन आप वर्मा साहब को प्रश्न करेंगे और वो उत्तर देंगे. थैंक यू. वेलकम. रविंद्र भाई. मैं वैसे तो काफ़ी लेट आया वर्मा जी. जैसे एक ऐसा पॉसिबल हो सकता है इमीडिएट जो सॉल्यूशन मुझे लगता है, सूरत जो है वो मेनली टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, नॉट दी गारमेंट मैन्युफैक्चरर. गारमेंट में अभी हम आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई बहुत बड़े रूप में नहीं आए हैं. तो जो टेक्सटाइल्स हम बना रहे हैं तो क्या नियर बाई कंट्रीज के साथ में गारमेंट बनाने वाली कंपनियों के साथ में कोलैब करें, जिससे कि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके यहाँ तो टैरिफ है नहीं, तो हमारा फैब्रिक वहाँ जाए और उनसे वो एक्सपोर्ट हो जाए. इज इट ए गुड स्ट्रैटेजी? बिल्कुल सही है सर. मैंने भी अपने प्रेजेंटेशन में वही डाला था कि इवन तो हम ज़्यादा दूर भी नहीं जाएं तो बांग्लादेश को छोड़ दें अभी डिस्टर्बेंस है. श्रीलंका और नेपाल दो ऐसे हैं कि स्टिचिंग प्लांट डालने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, हमें केवल पार्टनर चैनलाइज करना है अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते. बाकी तो हमारे लिए एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत से, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, प्लग एंड प्ले मॉडल अवेलेबल है. कहाँ? अफ्रीका में? इथोपिया में पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेट बने हुए वहाँ की कंट्रीज में. तो अच्छा. आज मैंने सुना है जिम्बाब्वे की 40 मेंबर्स की टीम आई है विद वाइस जिम्बाब्वे. प्रेसिडेंट. थोड़ा मैं इसके लिए उसको अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लगभग वो बैंक करप्ट के बाद में वापस निकल रहे हैं. अच्छा. तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसके लिए अभी मैं नहीं उसको कर रहा हूँ. बट मेरा ये मानना है कि अगर पूरे वर्ल्ड को आपका कपड़ा पहनाना है तो बहुत से सेगमेंटेशंस हैं. जैसे हमारे कंट्री में सेगमेंटेशन है, अपने को कंसंट्रेट करने का किस इनकम ग्रुप के लिए आप कपड़ा बनाने वाले हैं. हायर मिडिल क्लास जो है, सूरत को स्टिल वो जो कपड़ा चाहिए एमएमएफ में अगर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो अभी भी हम बहुत पीछे हो क्वालिटी में. हमें पहली बात वो अप्रैल ग्रेड क्वालिटी भी बनाना पड़ेगा. बिल्कुल. बाकी जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है वहाँ के लिए यस, लेकिन वो कंट्री स्पेसिफिक जो मैं एक चीज़ इसमें भूल गया सर. हर एक कंट्री, हमारा समस्या क्या है मेजर, नॉट हम इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, बहुत इससे अच्छे लोग भी हैं. हमारी समस्या क्या है, हम सोचते हैं जो हम बना रहे हैं वही हम बेचें. उस माइंडसेट से थोड़ा अगर हम बाहर निकले ना, सपोज जो मैंने आज ये आपको दिया, मैं प्रेजेंटेशन भी छोड़ गया, जो एनालिसिस है इनकम ग्रुप वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, उस इनकम ग्रुप वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज में भी सपोज हम कोई एक कंट्री पिकअप किया, बच्चों को लगा दो. आज सारी इंफॉर्मेशन आपकी नेट पे अवेलेबल है कि उनका पहली बार की उनके किस तरह के पहनावे हैं, किस तरह के कलर की उनकी पसंद है. हम कलर का फोकस ही नहीं करते हैं. हर एक कंट्री के लोगों की अपनी अपनी कलर डिमांड्स हैं. हमें अगर उस कंट्री को फोकस कर रहे हैं तो उस कंट्री स्पेसिफिक कपड़ों को हमें डिजाइन करना सीखना पड़ेगा. हर एक चीज हर एक जगह नहीं चलती है. तो वो थोड़ा हमें वो एक स्ट्रेटजी है चाहिए. तो वो भी मैं आपको एक डिटेल प्रेजेंटेशन, कैसे किसी कंट्री को मार्केट जब इंटर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज ध्यान देनी, तो वहां मैं चाहूंगा कि जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स की यंग जनरेशन है, बिल्कुल, क्योंकि वो ये स्मार्टफोन और लैपटॉप में बैठ के वो, मुझे आशा है कि 2-3 दिन में सारा चीज एनालाइज करके बता सकते हैं एंड बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अपने को नई मार्केट में बड़े आराम से जा सकते हैं. कैसे नेगोशिएशन होता है, कैसे जाके इंटर करने का, कैसे आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जहां थोड़ा अभी हम पुअर हैं. नियर बाई कंट्रीज में अगर हमें यूएस में देखने का और एमएमएफ की हम बात कर रहे हैं तो एमएमएफ के लिए हमें अपने अप्रैल ग्रेड फैब्रिक बनाना होगा, जिसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन अभी भी वही है कि हमारे पास अच्छा प्रोसेस हाउस नहीं है.
वो हमें बहुत में आशीष भाई और हम सब लोग डिस्कस यही करते रहते हैं कि एक अच्छा 2 बढ़िया से प्रोसेस हाउस लेकर के आ जाइए, आपके अपने आप काया पलट हो जाएगा नीचे। हम लोगों को जब पढ़ते थे, बीटेक करते थे, तो ये बोलते थे सारे वीविंग डिफेक्ट, यार्न डिफेक्ट, सब कुछ अगर आपकी प्रोसेसिंग आपने कर दी सब छिप जाता है। रविंद्र का बहुत अच्छा प्रोसेस है। नहीं, इंडिविजुअल्स की मैं बात नहीं, मैं जनरल सब बोल रहा हूँ। सो इसीलिए मैंने बोला कि जो एक हमारा जो एक्सपोर्टर से बात हुआ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं साहब, वो 100% टैरिफ यूएस को लगाने दो, माल उनको हमारे से मिलेगा, या तो ऐसा निश प्रोडक्ट बनाओ। तो दुनिया में कहीं घूम के उनके बाजार में वो चीज लगनी है तो लगनी है, और खरीदनी है तो खरीदनी है ना। सर, जैसे आपने कहा कि सराउंडिंग कंट्रीज के साथ हम कोलैबोरेट करके अपैरल या वो यूएस में बेचने का कोशिश करें। When we go to the nearby countries, that becomes neutral place. वहाँ चाइना से भी माल आ सकता है, इंडिया से भी जा सकता है। Now for the MMF, China is having more than 65% production of the world. Rest of the 35% में इंडिया है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? सर कुछ समय पहले One is elephant and another is a rabbit. सर रहने दीजिए, Rabbit के बाद सब चूहे हैं। रहने दीजिए सर। कुछ समय पहले हम होम टेक्सटाइल में भी यही सोच रहे थे कि चाइना और ये दूसरे कंट्री को नहीं ले जा पाएंगे। ये तो अनफॉर्चुनेट हो किसी को लग गया, नहीं तो पॉलिएस्टर के भी होम टेक्सटाइल्स में हमारा कोई नहीं पकड़ पा रहा था। आशीष भाई बैठे हुए हैं, कॉस्टिंग उनसे पूछ लीजिएगा कि चाइना से कम कॉस्टिंग आ रही थी। सर ये हमें एक मन में डर बैठा रहता है, हम वो क्वालिटी की बात ही नहीं करते हैं जो एक हायर लेवल की क्वालिटी चाहिए। प्रॉब्लम हमारा है कि हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को है कि हमें रॉ मटेरियल दे दो विदाउट ड्यूटी के, बाकी काम हमारे एंटरप्रेन्योर्स कर लेंगे, मुझे मालूम है। That is the key factor. तो जैसे आपने तो मेंशन किया कि हमारा जो यंग जनरेशन है दे शुड फोकस ऑन द इंडियन ब्रांड्स, तो ऐसा भी एक सुझाव दे सकते हैं कि भाई जब तक ये यूएस टैरिफ का इश्यू सेटल नहीं होता है तो टिल दैट टाइम फैब्रिक और गारमेंट का इंपोर्ट यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दे इंडिया में, ताकि जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्शन हुआ है वो यहाँ कंज्यूम हो जाए। और दूसरा सर एक एस्टीमेट ये भी है कि 2030 तक जो निश लग्जरी टेक्सटाइल जो है, लग्जरी टेक्सटाइल उसका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही बनने वाला है लग्जरी टेक्सटाइल का। तो वो एक अच्छे एनकरेजिंग फिगर है, तो उसको भी कैसे कैपिटलाइज किया जाए सर? बिल्कुल सही बात आशीष भाई, आपने बोला कि वो एक पॉइंट छूट गया, वो डाल देना चाहिए कि सारे इंपोर्ट टिल द ये सेटल नहीं हो जाती चीज़ें तब तक इंपोर्ट ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट तो बिल्कुल डिसअलाउ कर देना चाहिए। बाकी हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर है कि जितने भी यूएस ब्रांड है उनका बहिष्कार करें, अपने आप मार्केट खत्म हो जाएगी। टिट फॉर टैट। बोलिए सर। सर एक डाउट था इंडियन ब्रांड्स को लेके। सर अगर ज़ोडियो जैसी कंपनी इंडिया में इतनी अच्छी चल रही है तो सर शीन जैसी ब्रांड जो चाइना की है, रिलायंस उनको गवर्नमेंट से लड़के वापस से इंडिया में क्यों ला रही है? मैं इसीलिए इनडायरेक्टली आपको 3x मैंने बताया जो नेगोशिएशन चालू हुए, मेरा वरीज वही है जो आप बता रहे हैं, बट ये अभी बहुत ही स्टार्टिंग मोड में अभी टॉक चालू हुआ है। ये इतनी जल्दी इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं चीजें होती हैं, इट विल टेक 2-3 years टू कंक्लूड, बट इन द मीन टाइम हमें हर एक ट्रेड से, मैंने पहले ही बोला कि जो भी टैरिफ्स है हर एक कंट्री टैरिफ के बहाने अपने को निचोड़ने की कोशिश करेगा। ट्रेड खत्म मतलब आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब। तो हमें अपनी पोजीशन बनाए रहना है, तो हमें अल्टरनेट आज से ही निकाल करके रखना है, और अल्टरनेट्स निकाल के रखने में हमें वही है जो चाइना ने, बार बार मैं बोलता हूँ कि चाइना ने यही स्ट्रेटजी किया था, वर्ल्ड चीपेस्ट रॉ मटेरियल उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर्स को दिया। हमारी सिर्फ यही डिमांड है, और आज की जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर से मेरी बात होती है वही बोलते हैं सर रॉ मटेरियल मिल जाएगा बाकी तो हम जीत लेंगे।
बाकी हमें सारी कॉस्टिंग मालूम है कैसे करें। जस्ट वन अपडेट रेफरेंस टू हिज क्वेश्चन। अभी हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है रिलायंस के साथ रिगार्डिंग दिस QCO ओनली। तो हमने भी सर यही आर्ग्यूमेंट किया है कि जब आपका वर्टिकल अलग है, यार्न एंड फाइबर का वर्टिकल अलग है, गारमेंट का वर्टिकल अलग है, तो आपके जो गारमेंट के जो भी कंट्री हेड है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई सबसे एफिशिएंट और सबसे इकोनॉमिकल गारमेंट हमें चीन से चाइना से मिल पाएंगे। तो वैसे ही हमारा ये है कि भाई हमें सबसे हमारा जो वर्टिकल है यार्न एंड फाइबर कंज्यूम करने का, तो अगर वो हमें यार्न QCO हटाने के बाद मिल जाता है तो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द सेम गारमेंट टू यू। ये हमने रिलायंस के साथ ये डिस्कशन फ्लोर पे ला चुके हैं हम लोग। चालू है हम लोगों का सारा चीज़। regarding QCO, हाँ it is obstructing the import of yarn, which is hampering the making of fabric or apparel in India, against which lots of fabric and apparels are already Absolutely, coming yeah. without any QCO. no, this is what has happened। वो रिप्रेजेंटेशन किए जा चुके हैं। मैंने वो अभी चैम्बर ने पूरा भेजा डेटा के है। साथ दिया है डाटा कि के साथ दिया भाई है। जो यार्न रिस्ट्रिक्ट है उससे बनने वाला जो फैब्रिक और गारमेंट है उसका QCO होना इंपोर्ट चाहिए। हैज राइज बाय 90%। इसीलिए तो उन्होंने इनडायरेक्ट बोला कि जो भी बाय द टाइम टैरिफ मैटर रिजॉल्व नहीं होता तब तक फैब्रिक और ये सारा इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए। और उससे जाके मैंने और बोला कि ये हमारे लोगों के ऊपर है कि जब तक नहीं जितने US ब्रांड का है उनको खाली पड़ा रहने दो। वर्मा जी, जैसे अभी अमरीश जी ने बोला कि कुएं को जाना चाहिए कस्टमर के पास, वैसे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं तो चैम्बर को एक सेमिनार वहाँ मार्केट में, मिलेनियम मार्केट में जाके करना चाहिए। और जो आपने जो डेटा दिया है कि कौन कौन से कंट्री पे कौन फोकस करना है, दैट शुड बी डन एट द अर्लीस्ट। क्योंकि जैसे इथियोपिया, श्रीलंका में गारमेंटिंग करके बेच सकते हैं, एंड अदर कंट्रीज जहाँ पे वो CAGR ज़्यादा है वहाँ पे कपड़ा बेच सकते हैं। मेरा एक ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला जहाँ FTA है हमारा, जीरो ड्यूटी का जिनके FTA हमारे हो चुके हैं, पहले वो कंट्री को करिए। हर एक तो कंट्री में भी हम जंप अप नहीं कर सकते शुरुआत से। तो हमको एक्सपोर्ट एसोसिएशन वाले को पर्टिकुलर फोकस करके मार्केट में जाके उनको एजुकेट करना चाहिए। यस तभी वो फास्ट रिजल्ट आएगा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हियर। सर, मैं तो अवेलेबल हूँ आप लोगों की सेवा के लिए, जहाँ बोले वहाँ जाएंगे। थैंक यू सर। वर्मा साहब, आपने भी जैसे थोड़ा सा PLI को टेस्ट किया था, वैसे आज का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सरकार ने भी PLI 1 को रीओपन किया है और $100 बिलियन का मिनिमम इन्वेस्टमेंट का उसका टारगेट है। तो क्या है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 4 लोग 5 लोग 6 लोग मिलकर 100 बिलियन का अपना कोई भी गारमेंट का सेटअप नहीं कर सकते, ताकि जिन कंट्रीज के साथ हमारा FTA है उन कंट्रीज के माध्यम से हम अपने ओवरकम कर सकें ऐसी डिफिकल्टीज को। क्या आपको ओपिनियन है PLI के बारे में? सर, PLI में प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स ने भी पूरी एप्लीकेशंस दी थी। PLI में प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसा कल उन्होंने बताया, आप लोग भी जो भी ऑनलाइन उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने सर्टेन HSN कोड उन्होंने सेलेक्ट करके रखे। अब आप एक कपड़ा बना रहे हैं, मतलब सपोज एक गारमेंट बनाने जा रहे हैं, गारमेंट में 10 चीज़ें लगती हैं, अब 2 चीज़ें उन्होंने उसमें रखा हुआ है, बाकी 8 चीज़ें माइनस रखी हुई है, तो वो कैसे बेनिफिशियरी होगा? तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारा होगा उस पर्पज के लिए वो 100 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमें 600-700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर PLI का टोटल फायदा उठाना। इसके लिए मैंने एक दिन पहले, जैसे मेरी नॉलेज में आया था कि कल ये सेमिनार है, मैंने पहले ही बोला था, हमारे मनोज सेठिया जी बेचारे 300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे PLI में, उनको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि सर्टेन आप जब एक प्रोडक्ट एज ए होल, एक HSN कोड को आपको सेलेक्ट करना चाहिए था, बजाय आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, जहां उन्होंने एक वो बोलते हैं ना कि एक कहावत हमारे यहाँ की, एक मैथ के टीचर जा रहे थे नदी में अपने बच्चों के साथ में, नदी में बाढ़ थी, तो उन्होंने बस सारे बच्चों का और खुद का जो है हाइट निकाली, उसका एवरेज निकाला, नदी की हाइट निकाली, बोला नहीं सब एवरेज हाइट ज़्यादा है नदी की बाढ़ से, हम सब निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। नहीं, अभी हम बात बोल सकते हैं इसके लिए, पहले हम नहीं बात 1 साल पहले बोल सकते थे। तो एवरेज नहीं चलता है, ट्रेड अपने हिसाब से बिहेव करता है।
तो ट्रेड को अगर हमें सही ढंग से ले जाना है तो उसमें हमें प्रोडक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उन्होंने जब स्कीम बनाई किसी को भी नहीं पूछा ग्राउंड में, उन्होंने सीधा एवरेज निकाला, अच्छा इस कैटेगरी में 5% से नीचे एक्सपोर्ट है, डाल दो ये HSN कोड। अब उस HSN कोड से लगते हुए वो तो टेक्निकल टेक्सटाइल जो कल वो सेखी भागा रहे थे कि हमने टेक्निकल टेक्सटाइल में फ्लेक्सिबल लगा है, वो तो लड़ झगड़ के मैंने करीब 250 HSN कोड हमने आइडेंटिफाई करवाए थे, भाई डालो इसमें, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। बट अगेन अगर करना है, कंट्री के सामने मुसीबत है, हमें लड़ना है सारी दुनिया से, तो मेरे हिसाब से वो कैबिनेट में जाकर के उसको खुला करवा देना चाहिए। वर्मा साहब, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं बार बार, कॉमर्स मिनिस्टर बोलते हैं कि कोर सेक्टर जितने हैं, पीएलआई स्कीम के माध्यम से कोर सेक्टर ने बहुत ग्रोथ की है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन एंड स्टील, एग्रो, फार्मा, लाइक दिस। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पीछे है? हम लोग कहाँ, किस चीज में हम वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पा रहे? सर वो जो सेक्टर्स हैं अगर आप देखेंगे वहाँ उनका एक ही लीनियर प्रोडक्ट टाइप के हैं, एक ही मतलब सारे लगभग HSN कोड ज़्यादा नहीं है। हमारे टोटल साइन नॉर्म से HSN कोड देख लीजिएगा, हर एक प्रोडक्ट के कितने HSN कोड बनाए हुए हैं। तो आप उसमें से सपोज 500 HSN कोड में आप सिंपली 50 को अलाउ करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैटर वहाँ है। इसके लिए PLI अनसक्सेसफुल, सेंचुरी जैसा आदमी निकल गया, हमारे यहाँ के सेठिया साहब निकल गए। तो ये तो स्कीम को इन्होंने, क्योंकि टोटल टारगेट नहीं पूरे हो रहे थे, इसके लिए उन्होंने वो लॉन्च नहीं हुआ ITJ, उन्होंने री अलाउ कर रहे हैं, एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। बाकी पॉलिसी लेवल में कोई नयापन नहीं लेके आए, जो कल भी इम्प्रूव हो गया, जो मुझे डाउट था, बिना चेंज किए हुए लेके आ रहे हैं। तो इससे फायदा नहीं होने वाला है हाल फिलहाल, जो मेरा मानना है। हाँ कोई बड़ा, लेकिन वो HSN कोड फाइबर या फिलामेंट बनाने वाले HSN कोड्स रखे नहीं इन्होंने PLI में, कि भाई चलो हम ये माने कि आज रिलायंस ही बोले कि भाई चलो 1000 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, या हमारे नायलॉन वाले बोले कि भाई हम डाल देते हैं। तो वो HSN कोड फाइबर वाले है ही नहीं है, तो फायदा अल्टीमेटली किसी को नहीं मिलने वाला है। रविंद्र भाई, आपको नहीं लगता क्या? हाँ, यस यस। मैं आपसे उसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो मैंने पहले सवाल पूछा था कि हम कोलैब, आपने बताया कि कोलैब करना बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वी आर द फैब्रिक प्रोड्यूसर एंड गारमेंट एक्सपोर्ट का। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केटिंग में हम लोग सब वीक है बहुत। यस। तो जैसे अभी गिरिधर गोपाल जी ने पूछा कि हम मार कहाँ खा रहे हैं, तो मेरे को लगता है मार खा रहे हैं मार्केटिंग में। सही बात। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ऐसी एजेंसी हो सरकार की जो बहुत उस स्केल की हो, क्या बात? जो सब लोगों को कनेक्ट करे, मतलब जिसके पास पूरा डेटा हो? आपने बताया नेपाल, श्रीलंका या दूसरी कंट्री का, और हमारे यहाँ तो पूरा डेटा है ही अच्छे मैन्युफैक्चरर का, जो उनको कनेक्ट कर सके। आई वांट टू पुट दिस। सर कनेक्ट करने के लिए EPs बनाए गए थे, अनफॉर्चुनेट वो कोई काम नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। एक काम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का है। और प्रॉब्लम ये है कि जो भी चीज़ डिस्कस होता है तो जो भी प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो 4-5-10 लोगों के अलावा बात की बात ही नहीं होती है कहीं पे। तो वो फेल हो गया मॉडल, तो एक दूसरा मॉडल लाया जाए। मॉडल सर नहीं बनते, फिर क्या होता है कि ज़्यादा डिपेंडेंसी मत करो, खुद खोजना चालू करोगे, बहुत रास्ते हैं, चाहिए तो मैं खड़ा हूँ आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनी मोर क्वेश्चन? कोई बीजो सवाल हो तो? वर्मा साहब, एक बात है, कभी जो फ्री ट्रेड हो रहा है यूके में भी, दूसरी जगह उसकी इफेक्ट इसमें कुछ आएगी कि नहीं आएगी? सर US के बाद में जो सबसे बड़ा, अगर हमारा एक्सपोर्ट जो डाटा दिया, हमारा EU में और UK में ही जा रहा था। MMF हमारा मार्केट जापान बहुत अच्छी तरह हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो भारत टेक्स में जब मैंने जापानी डेलीगेशन के साथ में 3 दिन रहा था, उनसे डिस्कस किया, इसके पहले उनको यही नहीं मालूम था कि MMF में भी हम स्ट्रांग हो चुके हैं। एग्जैक्टली। पता ही जापानीज को नहीं मालूम है फ्री ट्रेड है आपका, उनको ये लगता है सिर्फ कॉटन, इंडिया मीन्स कॉटन,
उस दिमाग से उसी चीज को जब तक आपके लोग वहां जा करके मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं है। मतलब कस्टमर है, कस्टमर्स हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसको इस पर ध्यान देके इसमें ये करना चाहिए। सर अनफॉर्चुनेटली मैं भी 3 साल एडिशनल चार्ज पे था, मैं फुल टाइम नहीं था। ईडी में भी रह चुका हूँ प्रमोशन काउंसिल्स का। हाउ दे आर वर्किंग मैं ज्यादा ओपन हाउस में बात नहीं करना चाहता। इतना बड़ा संसद सभ्य है, ये है, वो लोगों को डिटेल में जाना चाहिए कि क्यों ये नहीं हो रहा है। ये आप लोग पूछ सकते हैं सर। वर्मा साहब, जैसे यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, क्या इनके साथ 27 देश इसमें है, इनके साथ FTA एग्रीमेंट हमारा नहीं हो सकता? नहीं, वो नेगोशिएशन से चालू है। यूएस मगर आज की परिस्थिति में पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं? यूएस हमारा थोड़ा सा सर इधर जा रहा है। समस्या ये है कि चाहे मैं बार बार लास्ट टाइम भी बोला था या उस दिन भी काउंसिल्स की जब अपनी टास्क फोर्स की मीटिंग हो रही थी, यूके और ईयूज में जो उन्होंने जो टैगिंग रेगुलेशन जिसके लिए आपने प्रेजेंटेशन के लिए एक बार बुलाया था, हमें सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी की टैगिंग पैरामीटर्स को जब तक नहीं समझेंगे वो मार्केट हमारे लिए वो भी छूट जाएगी। हमें टैगिंग और जो यूके ने अभी पैकिंग रेगुलेशंस लाए, हालांकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना यू का जो रेगुलेशंस है, तो हमें वो सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी की जो टैगिंग्स रिक्वायरमेंट है वो हमें पहले समझना चाहिए। उसी हिसाब से हमें अपना प्रोसेस अलाइनमेंट लेके आना पड़ेगा, सो दैट सर्टिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट बहुत बड़ी है। अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है कि मैंने जापान का क्यों नाम लिया इनके ऊपर, क्योंकि जापान में अभी भी पैसा है, डिमांड है। यू आप देखेंगे कि इनकम के मामले में धीरे धीरे वो डाउन जा रहा है। मैंने इसके लिए प्रायोरिटी सब नहीं दी है। वर्मा जी, जैसे आपने बताया सर्कुलरिटी और सस्टेनेबिलिटी, तो मैं इसी बिजनेस में ऑलरेडी करीब 20-25 साल हो गए, 25 साल से हूँ। तो हमने सारे अचीव किए हैं, सारे सर्टिफिकेशंस हैं, इकोटेक्स है, GRS है, चाहे हिग्स है, सब है। तो लेकिन और हम पूरी सर्कुलरिटी और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन भी करते हैं सर। लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ एक नई चीज और ले आते हैं हर बार। जैसे अभी ले आए हैं कि अगर कोल बेस्ड आपकी फ्यूल है, कोल फ्यूल है आपका, तो हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे। अब पूरा सूरत जो है कोल पे चलता है। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट ले आते हैं हर दो साल में कि जिसको सॉल्व करने में ही 3-4 साल निकल जाते हैं। सर वो तो क्या, करें? नहीं, वो उनका गलती नहीं, वो तो आपके लिए एग्जामिनर या असेसर्स आते हैं, आपके ऑडिटर्स आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यू क्या है, हर 2 साल में वो रेगुलेशन चेंज कर रहा है। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म, इसीलिए मतलब जो उनका लेटेस्ट है, जो मैंने प्रेजेंटेशन भी चैम्बर के प्रोग्राम में एक में दिया था, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं इसीलिए यू को अभी फोकस नहीं करने, जो चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि उनकी इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि वो आपका कंप्लायंस करते करते आपकी कॉस्टिंग उसी में जाएगी। ऑडिटर्स उनके हैं, आज एक ऑडिटर्स की कॉस्ट 3 से 4 करोड़ रुपए पर एनम आ रही है। तो छोटे इंटरप्रेनर्स कहाँ से वो चीज़ बियर कर पाएंगे? उसका अल्टरनेट मैकेनिज्म मैंने, जब मैं था गवर्नमेंट में, मैंने ये सजेस्ट किया था कि हमारा BIS इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये है कि जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन एजेंसी हर एक कंट्री की है, अगर वो खुद के नॉर्म्स डेवलप करता है और इंटरनेशनली एक बार एक्सेप्टेड हो गया, तो हमारा BIS या सिमिलरली प्लेस्ड बॉडी के सर्टिफिकेशन वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होंगे। हमारी प्रॉब्लम अभी तक ये सस्टेनेबिलिटी सर्कुलरिटी में हम फॉरेन ऑडिटर्स के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है, पूरे डिपेंडेंट, और सारा कॉस्ट वही हम मार खा रहे हैं, जो मार्जिन है वही जा रहा है। ठीक है ना सर? बिल्कुल सही है। So thank you so much, वर्मा सर। प्रोग्राम को आखिरी पड़ाव पर ले जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट श्री आशीष भाई ગુજરાતી વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે। આશીષભાઈ ગુજરાતી બધા જાણીએ એમ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રી છે અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં એમનું ઘણું મોટું નામ છે અને વેરી નોલેજેબલ પર્સન એઝ ફાર એઝ ટેક્સટાઇલ ઇઝ કન્સર્ન। હું તો એવું માનું છું કે અવારનવાર જ્યારે આશીષભાઈના પ્રવચન રાખીએ છીએ તે પણ ઘણા ઇન્ફોર્મેશનવાળા હોય છે। તો આશીષભાઈ હંમેશા આપણી ઉપર આશીષ વર્તાવ રહે
थैंक यू। આશીષભાઈ, थैंक यू। आज का ये जो इंटरेक्टिव सेशन था रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ द यूएस टैरिफ, इतना क्रिस्प और इतना डिटेलिंग कमाल कमाल। शायद अगर कोई और मेट्रो सिटी में होता, वहां पे 2000 लोग होते हैं और 2000 लोग 5000 का टिकट लेके भी अटेंड कर लेते। सही बात। So it was like a presentation by any one of the big 4 companies. और इनका जो टेक अवे था, मैं तो ये बोलता सबसे पहला है कि भाई चाइना का नेगेटिव CAGR, तो उसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। नेगेटिव CAGR चाइना, मतलब वी हैव टू टेक द एडवांटेज। जो आगे मैंने एक मेरे प्रेजेंटेशन में भी ये किया कि भाई ओवरऑल इन टेक्सटाइल चाइना CAGR कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री, जो जापान ने किया था आगे। फिर उन्होंने जो प्रेजेंटेशन में जो पॉपुलेशन एंड इनकम वाइज का जो शीट दिया था, वो अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड, वो डेटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आप ये प्रेजेंटेशन जो छोड़ के जाएंगे, सब यंग जनरेशन को लगा देंगे धंधे पे, इसके पीछे लगो अभी। और यंग पॉपुलेशन का जो शिफ्ट का बताया, वो भी हमें आप लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे तो भाई अभी जो भी है इंटरनेशनल ब्रांड को अभी 3-4 महीना साइड पे रख के इंडियन ब्रांड्स पे हमें फोकस करना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जो गवर्नमेंट ने लास्ट वीक की जो अनाउंस किया था कॉटन में जो टेम्पररी ड्यूटी एग्जम्पशन रिलीफ है, तो सर अभी हमारा तो केस ज्यादा स्ट्रांग बन गया ड्यूटी हटाने के लिए कि भाई हम तो 5.5% ड्यूटी पे करके लिए लाने, उसके बाद भी हम रेडी है। मिनिमम 6 महीने के लिए रिक्वेस्ट करिएगा सर। नहीं, ये तो अभी परमानेंट ही निकालने के लिए कोशिश जारी है। वो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर कॉटन इज अ वेरी सेंसिटिव कमोडिटी जो फार्मर से लिंक्ड है, अगर उसको अगर आप 30 सितंबर तक अगर एक्सटेंशन मिलता है, और ऐसी भी उम्मीद है कि आगे भी फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा, देन टारगेट FTA कंट्रीज फॉर द एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन, ये भी बहुत ઇમ્પોર્ટન્ટ, मतलब બહુ મહત્વનું છે। હવે આપણે ત્યાંથી ફેબ્રિક ધારો કે જે FTA કંટ્રીઝમાં આપણે ત્યાં મોકલી આપીએ ને ત્યાં ખાલી સ્ટિચિંગ કરીને મોકલવાનું છે। શ્રીલંકા જેવી કંપનીનો એમનો, એટલે શ્રીલંકા જેવી કંટ્રીનો આપણે આપ્યો અમને એક્ઝામ્પલ, જે ગાર્મેન્ટિંગમાં કન્વર્ઝનમાં એ લોકોને એક્સપર્ટીઝ છે, તે પણ બહુ સારી વસ્તુ હતી। અને આજે એક વસ્તુ છે કે ભાઈ US તો ગાંઠપણ કરવા બેઠું છે, ટ્રમ્પ જે કરવું એ કરે, પણ આપણે હવે જે સરે જે બીજા બાકીના ડેટા આપ્યા કે ભાઈ બાકીની જે કન્ટ્રીઝ છે એમાં કેવી રીતે ઓવરઓલ એક્સપોર્ટ વધારવું, 5 કંટ્રીમાં બી આપણે 5% જો એ કરી શકીએ તો એનું જે 30-32%નું જે માર્કેટ શેર છે આપણું, 5 કંટ્રીમાં 5% વધારો તો 25% થઈ જાય, એટલે બીજા 65% જે રહે। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, और वी आर थैंकफुल टू अवर मेंटर मुंद्रा जी, जो ऐसे अच्छे टॉपिक पे, रिलेवेंट टॉपिक पे, और अभी उन्होंने अभी बताया कि भाई आई इंसिस्टेड कि भाई दिस शुड बी डन बिफोर 27 अगस्त, और आज की डेट ही ज़्यादा सुटेबल थी। अच्छा वो आज हो गया ये प्रोग्राम। અને અમરીશભાઈ થેન્ક યુ ફોર યોર MOC, મહેન્દ્રભાઈ, आर्य जी, और स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप आए इधर और बहुत ही पेशेंटली आपने ये प्रेजेंटेशन। कृष्णानी साहब अच्छा कृष्णानी सर also, અને આપણા જયંતિભાઈ બી આવ્યા છે આજે, ભલે જયંતિભાઈ થેન્ક યુ। એ એમાં છે ડાયમંડ એન્ડ જ્વેલરીમાં, કદાચ જયંતિભાઈ તમારું લોકોનું તો દુબઈ વાળું ઓપ્શન સારું ઓપન છે, એટલે જ્વેલરીમાં બહુ વાંધો નહીં આવે। બેસિકલી તો ટેક્સટાઇલ છે, ધંધો બંધો છે આપણે ટેક્સટાઇલ ની પથારી ભરી, ના પથારી કઈ નથી ભરવાની, એ લોકો ટેક્સટાઇલમાં આવે ને, નહીં હવે ટેક્સટાઇલમાં આવે, એના પ્રોગ્રેશન થવાનો છે। જો ટેક્સટાઇલમાં ડાયમંડ વાળા આવશે તો પ્રગતિ જ થવાની છે। અરે પ્રગતિ નહીં થતી, આ જે જેને બધા પરિચય। ચલો એનીવે થેન્ક્સ અ લોટ, થેન્ક યુ।